Hello. Hello. Please, ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you and I can see you, ma'am. Okay. So we'll be starting the talk. Okay, ma'am. Okay. Am I visible? Yes, ma'am. You're visible. Okay. No, ma'am, your video is not, visible. Breeze, ma'am, Yes, your video is not visible. You are not visible. I'm not visible, but I can see myself. Uh, That means here, here it is not visible. Tanu, ma'am, am now. I right? She's not visible. Yes, ma'am. Ma'am, आप देख नहीं रहे हैं. Okay, let me check up. Yeah. The co-host has to start. Now you have. Am I visible? No, ma'am. No, ma'am. मैम अभी भी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. ब्रीज मैम. हाँ जी, हाँ जी. I can see myself, but they cannot see. Please. I can see her. See, I can see everyone. Yeah, this is my video. Maybe the bandwidth is low. That is the reason. No. Now you are visible. Now you are visible. Hello, everyone. So we'll begin. Yeah. Good evening, everyone. This is Neelam Chaudhary, Headmistress, Sage International School. I welcome you all to the Sage Talk. To begin with, I would like to introduce you all to the Sage group. So here goes an AV. यार
I cordially invite speaker of today's talk, Mrs. Breeze Tripathi, who is a self-defense expert. Over to Breeze, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Uh, I'm very thankful and feel honored that you have invited me for this talk. Madam Neelam Chaudhary, the headmistress of Sage School, and the moderator Neeta Jain ma'am. So, as the topic says, women and women safety and self-defense. See, these kind of programs are actually meant to be done face to face, but it's okay. Somehow we are having a lockdown time, and we are not having enough. What you say? We don't have a time right now to meet face to face. So now webinars are there. Even then we are connected. We are well connected. Like Sage is doing many activities otherwise also. So this is one of the activity which Sage is doing through webinar. Because I have seen many people talking about psychology, talking about the other things, motivation, all these kind of subject. But self-defense or women's safety is a subject which is actually Sage is doing. Sage is the only, you can say, the first one to do through the webinar session. So without wasting time, let's start with our session. So when we speak about women's safety, people actually think that what is women's safety, women are safe or not. If you people are unmuted, I would like to interact with you. Could you please don't raise your hand because I cannot see you, but if you are agree with me that women or children are not even safer at their home, even if you are agreeing with me this fact, then you can say yes. Do you really think that at their home it is unsafe somewhere? I'm not saying every home is unsafe, but somewhere it is unsafe. Over the past few years, incidents of crime against women have been on the upswing in India. More and more women are joining the urban workforce. Why urban workforce? We can say even the rural workforce, and the safety of women continues to be a major area of concern. Can you hear me all? Hello? 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 Yes, ma'am, we can hear you. You're Okay, audible. okay. In spite of many regulations laid by the government, the women's safety is at a stake. And if we say that the key economic centers of the country like Delhi, Bombay, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Pune, all these areas has been an increase in the number of cases of harassment and molestation being reported. However, the conviction rates are poor because of the poor judicial system, faulty methods of collecting forensic evidence or samples, and limited use of modern technology. Everybody will agree on that. Most cases of sexual harassment at home, as I said,
even home are not safer. Work or public places are often not reputed or reputed due to the cultural inhibitions in many part of the country, where the stigma is attached to the victim rather than the perpetrator of the crime, who often gets away. Stigma is what? Like, अरे बच्ची का बदनामी हो जाएगा, मैं बोलूंगी तो बॉस का कुछ नहीं जाएगा, मेरी बदनामी, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे. Got my point? So we at Rakshita have been propagating the concept of women's safety awareness and self-defense training, which not only increases their awareness in various potentially unsafe situations, but also teaches women how to protect themselves against a physical attack using common techniques and common sense self-defense techniques. My techniques are, I could say, not martial art related, though I am a martial art trainer. I am a taekwondo player, but I have not used any kind of taekwondo material or taekwondo techniques in my self-defense techniques. I have actually developed by myself the techniques which a woman can use when she is wearing a sari. Got my point? I hope everybody is listening to me properly. Even you are wearing a sari, which is our traditional dress, you can protect yourself, you can defend yourself. So all these, the physical attack, we can always protect ourselves against the physical attack using a common sense self-defense technique. So this handbook is basically, I will share some of the contents. Now I'm going to share a PPT. Give me a minute. I'm not very okay. Now I will share the screen, the PPT, which will, everybody can, are you able to see the PPT now? Yeah, it is visible, right? Visible, no? So the contents are safety awareness, which we are talking about, crime against women, legal guidelines for that, sexual harassment at workplace, because we all are working. And again, with due regards, I'm not saying every workplace is, the sexual harassment is there, or people are facing, women are facing, but we can say more than 65% of the data says that the more than 65% workplaces are not safe for women. At last, we will share some self-defense techniques, which as we are not able to show directly with some kind of object, I will try to show you some of the PPTs of my, the pictorial PPTs, real picture, which I have done. So first of all, safety awareness says that flight, not fight. That means whenever you recognize that a situation is potentially unsafe, you should run away or get away from there. But if you can't run immediately, defend, disarm, and disappear. Got my point? How to defend, disarm, and disappear is self-defense technique. You should learn some of the techniques which I'll show you. In that technique, you will learn how to defend and how to disarm if he is having some kind of weapon, some kind of arms, or anything which can harm you. Then disappear. Disappear means just run away from the situation. Running away is the best self-defense ever one can do. You can and you should defend yourself. Now how? The 3 A's are there: alert, anticipate, and avoid. Alert, anticipate, and avoid is, if you are alert, you can always anticipate what is going to happen. The potential problems you can anticipate, and you can avoid the unpleasant situations. Whenever you are in doubt, shout aloud. That means just shout for help, bachao, koi hai, all these kind of stuff. Don't say that help, 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 because we are Indians. हमें हिंदी ही समझ में आती है. We think in Hindi.
हम हिंदी में सोचते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, देन वी फ्रेम ए सेंटेंस एंड वी स्पीक. एम आई राइट? सो हिंदी राष्ट्रभाषा होने की वजह से अगर आप कहीं भी बचाओ चिल्लाते हैं तो लोगों का दिमाग जल्दी से वो चीज पकड़ लेता है. Few general awareness we should keep. First of all, be aware of your habits. What kind of habits? Like some of us may be having, punctuality is very good, but being punctual on a particular time, being punctual on some, ways. If you are taking a particular road, particular way, particular vehicle, time bounded, you like at 9 o'clock you will be passing through the new market area, or you will be passing through a isolated area. New market is crowded in some kind of Neelbad area where isolation is there, isolated area. The person can notice that okay, ye madam 9 baje Neelbad ke samne se nikalti hai, wo bhi akele scooty pe. Got my point? So you should be aware of your habits. आपकी कुछ हैबिट्स ऐसे हो सकती है कि आप बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो सकते हैं. आपका फोन अनलॉक रह सकता है, आपके जो वेयर अबाउट्स हैं वो फेसबुक पे रह सकते हैं. समवन वाज टेलिंग मी कि मैम साइबर क्राइम भी तो औरतों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो लेडीज अकेली रहती हैं उनके लिए जस्ट टू कीप देम सेफ, वो अगर कुछ काम कर रहे हैं, नाउ इट इज वर्क फ्रॉम होम. अब लॉकडाउन में हम ये कोविड की वजह से हर इंसान घर में बैठ के काम कर रहा है, अब वो डेटाबेस यूज कर रहा है. अब उस डेटाबेस में मान लीजिए कोई अनजान अपरिचित आदमी आपसे कनेक्ट होता है, तो आपके पास इतना, आप कंप्यूटर से भी टेक्नो से भी होना चाहिए. मोस्टली वी विमेन आर लाइक बेटा कर लेगा. इवन अभी मैं भी, आप ज्यादा दूर ना जाइए, मेरा भी कैमरा नहीं चल रहा था तो मैंने भी अपने बेटे से बोला कि माय कैमरा इज नॉट वर्किंग. So awareness about surroundings, potential attackers and his likely behavior. Like if you know that you are passing through Neelbad and कुछ शराबी वहां से घूमते हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो रफ लड़के हैं, वो बार बार मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट पास करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. हमारे अंदर एक छठी इंद्री है, आप सब जानते हैं, आप लोग मानते हैं ना कि लेडीज के अंदर एक छठी इंद्री होती है. We actually anticipate a person's eyes, a person's view when he actually stare at us. We are very well aware. हमारे पीठ पीछे भी कोई हमें घूरता है तो हमारी छठी इंद्री हमें बताती है कि हमें कोई घूर रहा है. So trust your instinct. Remember, your age, dress isn't a barrier. It can happen any time, anywhere. Would you believe that 80-year-old woman in Kerala got raped, molested? 80-year-old. क्या एज है? कोई एज है वो? दादी नानी की एज. और ड्रेस ऑब्वियसली साड़ी पहनी थी वो, उन्होंने कोई मिनी स्कर्ट नहीं पहना था. सो योर एज, योर हैबिट्स, sorry, your dress never matters. It can happen to anyone. Don't run from the danger, run towards safety. Someone is saying something? No ma'am, you can continue. Okay, I hope I'm able to deliver it properly. Yes ma'am. So remember that don't run away from the danger, run towards safety. This means, हैव यू सीन, जब हम कोई हिंदी फिल्म देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हीरोइन होती है वो भाग भाग के ऐसी जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ से वो गिर जाती है, एक दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है और बचाओ कहती है. इज इट गुड? आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे भागना सही रहता है? No ma'am. हमें सेफ्टी की तरफ भागना है, हमें सेफ्टी की तरफ भागना है. इफ यू आर आइसोलेटेड, इफ यू आर इंडेंजर्ड, jeopardized in a place where no one is there, then you should actually run towards the city, towards the people where shop जहां होंगे, कोई मंदिर होगा, कोई भी ऐसा प्लेस जहां आपको लगता है यहाँ से मैं बाहर निकल सकती हूँ. एक्चुअली मेंटल अवेयरनेस बहुत काम करता है.
मैंने अक्सर देखा है जब मैं कभी किसी लेडी से ये कहती हूँ कि आप मेरे साथ आके प्लीज बी एन ऑब्जेक्ट फॉर मी, तो गर्ल्स आर सिंपली दे अवॉइड, इवन गर्ल्स वुमेन दे अवॉइड कि कौन जाएगा स्टेज पे सबके सामने और कौन सीखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं गिरूंगी, लोग मुझे देखेंगे, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं ये कहती हूँ आपसे कि आपको हमेशा मेंटली अवेयर रहना चाहिए। क्यों अवेयर रहना चाहिए? कि आप हमेशा सोचिए कि हाँ ये मुझे देख रहा है, अगली बार आते वक्त उस पर ध्यान रखिए, कभी भी खोए मत रहिए, कभी भी गाड़ी चलाते वक्त घर के बारे में बात मत सोचिए, सिर्फ आप सोचिए मुझे इस सेफली इस डेंजर से बाहर निकलना है। सो यू कैन रिड्यूस योर रिस्क, नॉट एलिमिनेट देम। आप बारिश नहीं रुकवा सकते, आप छाता पकड़ सकते हैं, है ना? तो हमें यहाँ पे छाता खोलना है, हम बारिश तो रोक नहीं सकते, अगर डेंजर है तो है। तो अब उस डेंजर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमाइज करना है हमको। इफ यू हैव टू फाइट बैक, यू मस्ट नो हाउ टू फाइट बैक। ओके, सो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूंगी कि कैन यू सी मी? If I show you something, can you see me? Yes, ma'am. You can. Okay. See, if you have to fight back, you must know how to fight back. So fight back कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया. Is it visible? Yes, ma'am. किसी ने आपका हाथ पकड़ा. अब आप इस हाथ को एक सी कर्व में लेके जाएंगे, जो उल्टा सी होता है. ये पकड़ा किसी ने आपका हाथ, राइट? नाउ आप उसको सी कर्व में लेके जाएंगे, उसके हाथ को, अपने हाथ को, तो उसका हाथ अपने आप यहां से ऊपर आएगा. जब यहां से ऊपर आएगा तो आप अपनी कोहनी से उसके हाथ को मारेंगे, और ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, विद इन सेकेंड्स. आई विल शो यू. अभी आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, और अगर ये कोविड खत्म होता है और फेस टू फेस जब करने की बारी आती है तो मैं आपको सिखाऊंगी भी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं. मगर ये फाइट बैक करने के लिए यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स. सो नाउ कमिंग टू द टिप्स टू स्टे सेफ. ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर. हम ये देखते हैं कि जो डरी सहमी सी सकुची सी जो कन्याएं या महिलाएं होती हैं, उन पर हमेशा जो मोलेस्टेटर रहता है वो हमेशा उस पर निगाह रखता है. यू नो, वनरेबिलिटी, सॉफ्ट टारगेट, इजी अपियरिंग जो टारगेट्स होते हैं कि हम डर डर के ऐसे ऐसे देख के वो जा रहे हैं. ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट. अपना पोस्चर ऐसा बनाइए कि जब आप चलें तो सामने वाले को लगे कि नहीं यार, इससे अगर एक बात कही तो पलट के जवाब मिलेगा. गॉट माय पॉइंट? स्पीड डायल. आपके पास फोन पे एक स्पीड डायल ऐसा होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज से घिरे हुए हैं तो आपने फौरन वो बटन दबाया, तुरंत वो इमरजेंसी कॉल पे चला गया, वेदर इट इज ऑफ योर हस्बैंड, फादर और पुलिस. कैरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. जैसे आपके कंपनी के एचआर के कॉन्टैक्ट आपके पास होना चाहिए, इमीडिएट फैमिली मेंबर के कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कोई मेडिकल असिस्टेंस नंबर्स होना चाहिए, जीपीएस सेफ्टी ऐप होना चाहिए. आजकल मैत्री एक ऐप है, सखी एक ऐप है. इस तरीके के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है जिसको आप अगर क्लिक करते हैं अपने मोबाइल पे तो आपको तुरंत सहायता मिलती है. नेवर मूव आउट विदाउट ए फुली चार्ज मोबाइल फोन. अक्सर ये होता है कि जब हम ऐसे बहुत बड़े खतरे में गिर गए तो पता चलता है लो चार्जिंग ही नहीं था मोबाइल पे, हम गेम खेल रहे थे या हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो हमारा चार्जिंग खत्म हो गया. नाउ व्हीकल सेफ्टी. अगर आप कार यूज करते हैं और अगर आप बेसमेंट में कार पार्क करते हैं, हमेशा चेक योर कार आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम वैलेट पार्किंग. अगर आपने वैलेट पार्किंग कहीं दिया है और आपको कोई लाकर देता है कार, तो हमेशा आप उसको खोल के चेक कीजिए कि कोई बैठा तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं रखी गई है. हम जाते हैं होटल्स में, वहां पे वैलेट पार्किंग होती है और अकेले जाते हैं तो वो गाड़ी हमें लाके देता है. अप्रोच योर कार विथ कीज रेडी. हम देखते हैं कि फिल्मों में भी ये देखने को मिलता है हमें कि जब हम बेसमेंट में जाते हैं, अक्सर फिल्मों में ये चीजें रियल लाइफ में भी होती है, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल में इतना ज्यादा अभी
शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे अक्सर बेसमेंट पार्किंग्स होती हैं, पूरा बेसमेंट खाली रहता है। रात के 8 बजे लड़की ऑफिस से निकलती है, 8:30 बजे तक नीचे उतर के आती है, इतने अंधेरे में कोई नहीं रहता, और उस बेसमेंट में आप अकेले कार के साथ, फिर आप बैग खोलते हैं, कार के ऊपर रखते हैं, अपनी कीज ढूंढना शुरू करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अक्सर हमारे साथ गर्ल्स आर लाइक दिस, या कहना चाहिए कि विमेन आर समवेयर, कि वो कीज एक जगह पे नहीं रखती है। तो ऑलवेज अप्रोच योर कार विद द कीज रेडी। अवॉइड ट्रैवलिंग थ्रू डेजर्टेड एरिया। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप आइसोलेटेड डेजर्टेड एरिया में ट्रैवल करने से बचिए। डोंट अनलॉक योर कार फ्रॉम ए डिस्टेंस। दैट मीन्स अगेन बेसमेंट्स में जब हम दूर से अनलॉक करते हैं तो कोई भी हमारे कार में आके बैठ सकता है। हमारे फ्यूल टैंक हमेशा फुल होना चाहिए। मुझे अक्सर इस बात पे डांट पड़ती है, लेकिन ये बात सही है, हमें फ्यूल टैंक हमेशा फुल रखना चाहिए। सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रैवल, व्हेन यू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिमेन अलर्ट, ट्राई नॉट टू स्लीप। पुणे से जब भोपाल बहुत सालों से बसेस चलती हैं, गर्ल्स सो जाती हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए, अगर आप बहुत सेफली नहीं है तो आप सोए ना, किसी से बात करते रहिए, म्यूजिक सुनते रहिए, अपनी आंखें खुले रखिए। और अगर आप ऑटो या टैक्सी से है तो आपको पता होना चाहिए आप किस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं रोज यहाँ से जाती हूँ, ये ऑटो वाला मुझे यहाँ से क्यों लेके जा रहा है। अगर लेडीज कंपार्टमेंट एम्प्टी है, ये मुंबई के लोगों के लिए है, तो जनरल कंपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। आप कभी भी अकेले लेडीज कंपार्टमेंट में ना जाए। हमेशा आपके पास एक टॉर्च हैंडी होना चाहिए, ताकि अगर कभी लाइट जाए तो आपके पास टॉर्च हो। जब आप आउट स्टेशन ट्रैवल करते हैं तो आपके लोगों के पास आपके नंबर, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें होना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि ऑटो टैक्सी सबके नंबर्स हमें SMS कर दे। ऐसा ट्रैवल प्लान कीजिए कि आप सुबह निकले और रात तक घर वापस आ जाए। मेकिंग श्योर यू हैव इनफ सेल फोन बैटरी बिफोर लीविंग वन लोकेशन टू अनदर। प्री चेक योर रूट एंड GPS को हमेशा यूज करें। जब हम होटल में रहते हैं तो होटल में सारे प्री अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कीजिए बोर्डिंग से पहले, और ऐसा रूम लीजिए जहां से आप सेफ्टी, आजकल तो सब में होता है, फिर भी कोशिश कीजिए पीपल हो, सेफ्टी चेन हो। कभी भी किसी स्ट्रेंजर को अपने कमरे में आने मत दीजिए, हमेशा लॉबी में मिले। और हिडन कैमरास हमेशा चेक करें। मिरर्स के अंदर हिडन कैमरास होते हैं, तो जब हम हाथ रखते हैं मिरर्स के अंदर लाइक दिस, तो हमको एक डबल फिंगर्स दिखता है। नॉर्मल में हमें नॉर्मल अपने हाथ दिखते हैं, नॉर्मल फिंगर अंदर जाता हुआ दिखता है। अगर उसमें कैमरा है तो वो आपको अलग ही दिखेगा व्हेन यू टच इट। तो बिफोर अनड्रेसिंग और चेंजिंग योर ड्रेस आप ये सारी चीजें चेक करें। पब्लिक प्लेसेस पे सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? डोंट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। शौक सबको होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता कि हम अकेले होते हैं तो हमें बहुत सारी ज्वेलरी पहननी है। हम जब चेंजिंग रूम मॉल्स में चेंज जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 2 वे मिरर देखिएगा। और हमारा कोई डेली वॉकिंग शेड्यूल है, अगेन वही पंक्चुअलिटी की बात आती है, रूट्स चेंज कीजिए, पैटर्न ब्रेक कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन दौड़ने जाए तो रोज दौड़ने जाए, किसी दिन वॉक कीजिए, किसी दिन ग्रुप में जाइए, किसी दिन दूसरे रूट से जाइए, और किसी दिन साइकिलिंग कीजिए। अगर आपको कहीं वेट करना है, हमेशा आप बस स्टॉप के अंदर की तरफ वेट करने की बजाय आप सड़क पे वेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे लोग आते जाते दिखेंगे आपको। नाउ सेफ्टी एट सोशल गैदरिंग्स। डोंट लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड। ड्रिंक से मतलब यहाँ पे शराब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम अपनी पानी भी खुला छोड़ के वापस आने के बाद वो पानी ना पिए। अगर आपको कभी जाना है तो पहले अपना ड्रिंक खत्म कीजिए, फिर जाइए। इंश्योर दैट योर अरेंजमेंट्स फॉर ड्रॉप एंड पिक आर मेड वेल इन एडवांस। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आना जाना सारी चीजें एडवांस में आप उसको तैयार रखिए कि बस आप निकले बाहर और आपको आपका जो भी पिकअप पर्सन है, वैन है या ऑटो है, वो आपको तैयार मिले। आपके फैमिली फ्रेंड्स को आप बताइए आप कहाँ हैं, किस समय आएंगे, नहीं आएंगे तो फोन करें। ऐसे क्लोथ्स आप हमेशा पहने जो कि सिंपल हो, जैसे आप एक लेगिंग्स हुए, स्टॉल हुआ, या फ्लैट चप्पल हुए कि आपको अगर दौड़ना पड़े, आप हील पहन के आप दौड़ नहीं सकते हैं।
आप बहुत ज्यादा तामझाम वाले कपड़े पहन के आप भाग नहीं सकते हैं। तो इस तरीके के कपड़े हों आपके कि आप आसानी से भाग सकें। अब हम बात करेंगे घर में सेफ्टी की। जब कभी भी हम घंटी बजती तो सीधे जाके डोर ना खोलें, हमेशा होल्ड से देखें कौन है। कभी भी अपने वॉचमैन, अपने दूध वाले को घर के अंदर आने ना दें, कितने भी साल से क्यों ना आता हो। मैंने ये रियल केसेस देखे हैं, जो वॉचमैन या जो मिल्कमैन सालों से घर आता था, उन्होंने ही मोलेस्टेशन की कोशिश की है जब उन्होंने देखा है कि गृह स्वामिनी घर में अकेली है। क्योंकि हम उनसे थोड़े फ्री हो जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं भाभी जी पानी पिला दीजिए, तो हम अनअटेंडेड डोर छोड़कर पानी लेने चले जाते हैं। डू नॉट लीव योर डोर अनअटेंडेड। कितना भी किसी को बुरा लगे, बात करनी है तो आप दरवाजा बंद करके अंदर जाएंगे और फिर वापस आके दरवाजा खोलेंगे। आपके पार्सल्स को भी आप हमेशा कोशिश करें कि इसी तरीके से रिसीव करें। जो मेन आपका जो डोर या आपका जो गेट रहता है वहां पे पार्सल्स रिसीव करें और किसी को घर में एंट्री ना दें। ड्रेस मॉडेस्टी। मॉडेस्टली ड्रेस करने का मतलब है, देखिए इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। कभी कभी हम नाइटी में होते हैं, हम घर के कपड़े में होते हैं, हम दौड़ के आते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। तो उसके बजाय हम कोशिश करें कि नाइटी के ऊपर हम कोई एक कपड़ा पहन लें, कुछ भी जो मॉडेस्टली ड्रेस्ड लगे, हम कि किसी की नजर हम पे ना पड़े। फिर अब आती है साइबर क्राइम की बात, जो मुझसे एक मैडम ने पूछा कि अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए साइबर क्राइम की बात करें। मैं उसके लिए अलग से बात करूंगी, इसी में करूंगी, पर 2-4 बातें मैं ये करूंगी कि अपने फेसबुक पे बहुत सारा डिटेलिंग्स ना डालें। क्या जरूरत है कि आप कब पैदा हुई, कब आपका बर्थडे आता है, आपके अपने लोग तो जानते ही है ना आपका बर्थडे कब आता है। आप अनजानों के लिए क्यों डालना, पाउट करता हुआ चेहरा क्यों डालना, अपनी हर एक तस्वीर जो आपका फेस जूम करके देखा जा सकता है ऐसी तस्वीरें क्यों डालना, अपने सारे वेयर अबाउट्स लिंक्डइन में और सारे सोशल नेटवर्क्स में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। You should update your private settings regularly. Virtual to real, never go alone to meet someone or you meet online. क्या होता है कि आप ऑनलाइन मिलते हो, बंदा बहुत अच्छे से बात करता है, जब आप अकेले उससे मिलने जाते हो, आप लोगों ने अगर कभी इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी देखा हो तो उसमें एक वेबले आता है, तो वो ये बताता है कि जो नेट पे लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फ्रेंड्स बने, उनसे जब वो रियल टाइम में मिलने गए तो उन लोगों ने, उस बंदे ने उसको बंदी बना लिया या उसके साथ कुछ हरासमेंट कर दिया, और फेक अकाउंट था, वो कुछ नहीं कर पाई उसके साथ। सो ये अकेले कभी भी किसी से मिलने जाने की गलती नहीं करना हमें। सोशल मीडिया हरासमेंट बहुत चल रहा है। ऑलवेज मेक 2 काइंड्स ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। प्रोफेशनल प्रेजेंस होना चाहिए कलीग्स और क्लाइंट्स के लिए, और हमारे अपने घर वालों के लिए प्राइवेट प्रेजेंस होना चाहिए, जो जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं, जिनको हम जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट विमेन। अकॉर्डिंग टू द लॉ, crime against women can be classified as molestation, eve teasing, stalking, voyeurism, and sexual assault. Molestation is when someone is physically touching your body with that sexual overture, कि आपको पता है कि उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, उसने मेरे कंधे को क्यों छुआ, उसने चलते चलते मेरे को कोहनी क्यों मारी, ये मोलेस्टेशन है। इंटेंशनली अगर कोई आपको फिजिकली टच करता है किसी सेक्सुअल डिजायर के साथ। ईव टीजिंग, सीटी मारना और कहाँ जा रही हो, कल कहाँ थी, इस तरीके की बातें करना। आपकी अपनी एक मॉडेस्टी होती है, हमारी अपनी एक इज्जत होती है, उस इज्जत से जरा भी हटके आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसे ईव टीजिंग में लॉ के अंदर पनिशेबल होता है। स्टॉकिंग, अब देखिए ये स्टॉकिंग के इतने किस्से हैं कि अभी अगर हम बात करने लगे तो 1 घंटा हमारे लिए कम पड़ जाएगा। स्टॉकिंग 9-9 महीना, 10-10 महीना किया जाता है, लेकिन गर्ल्स ध्यान नहीं देती, विमेन ध्यान नहीं देते। यू नो दैट समवन इज फॉलोइंग यू, contacting or attempting to contact,
मैडम रुको मुझे आपसे बात करनी है, सुनो तो मुझे आपसे बात करनी है। आपने बार बार कहा कि मेरा रास्ता मत रोका करो, फिर भी वो 9 बजे या 10 बजे जब आप घर ऑफिस के लिए निकलते हैं वो आपका पीछा करता है। हमारे बचपन में साइकिल से पीछा किया जाता था, आज मोबाइल से पीछा किया जाता है, पीछा करना नहीं छूटा। तो ये भी पनिशेबल अंडर लॉ, स्टॉकिंग कहते हैं इसको। वॉयरिज्म इज समथिंग someone captures your image while engaging in a private act। आप नहा रहे हैं, किसी ने आपकी फोटोज खींच ली, या आप ऐसा अपने घर में इजी बैठे हैं और किसी ने आपके बाहर के फ्लैट से, आपके फ्लैट के सामने फ्लैट से जूम इन करके आपका फोटो खींच लिया। भाई आप अपने घर में बहुत इजी बैठे हैं, ऐसे लेटे हैं, बैठे हैं और आपका फोटो खींच गया। व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, उस वक्त अगर कोई आपका फोटोज खींचता है तो वो वॉयरिज्म के अंडर में पनिशेबल एक्ट है। नाउ कम्स टू द पार्ट सेक्सुअल असॉल्ट, व्हिच इज व्हेन अ वुमन इज coerced, forced, threatened against her will to participate in any involuntary sexual activity with a man, जिसे हम कहते हैं रेप। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट वो होता है और ये एक रेप करने की कोशिश होती है, सेक्सुअल असॉल्ट। अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस तरीके का कोई सेक्सुअल बिहेवियर जो अनवेलकम बिहेवियर होता है, विच नेगेटिवली अफेक्ट्स योर वर्क लाइफ। बॉस ने बुलाया, आपसे कहा फाइल यहाँ रखिए मैं देखूंगा, आप गए तो बॉस अपने मोबाइल पे कोई ऐसी चीज देख रहा है जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, वो भी हरासमेंट है। ऐसी कोई चीज बार बार बॉस मुझे कहता है कि मुझे फाइल वहां से नहीं यहाँ से लाके दो, आप लोगों को दिख रहा है मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने मैं बॉस हूँ और मैं आपसे कहूँ कि मुझे फाइल यहाँ लाके दो और मैं ऐसे आपसे बात करूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, ये तो सबको पता है, डोरी डिमांड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाउरी डेथ भी सबको पता है, किडनैपिंग और अबडक्शन भी सबको पता है, रेप तो सबको पता ही है दैट। अब देखिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी पॉक्सो करके एक एक्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट में बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो अनवेलकमिंग बिहेवियर्स होते हैं वो पनिशेबल होता है। पहले ये होता था कि जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट ही किया, सिर्फ रेप नहीं किया, आप गए पुलिस में कंप्लेंट किया तो पुलिस वाला आपसे पूछता था, मतलब वे बैक इन से मैं बात करूं 2000 से पहले की बात करूं, तो पुलिस वाला ऐसा कहता था कि अरे कुछ किया तो नहीं ना मैडम, बच गई ना आप, जाओ, क्यों हमारा और आपका दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, आपकी बदनामी हो जाए, घर जाओ। कहते थे कि नहीं कहते थे पुलिस वाले? आई एम नॉट गेटिंग एनी काउंटर फीडबैक एक्चुअली। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेले बोलती चली जा रही हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। Madam, everybody is listening to you. Actually, we have made everyone mute. That Okay. is why. Okay. Everybody is listening. Okay, right. So, सही चल रहा है ना? Yes, चेंज तो ma'am, नहीं yes, करना? ma'am. Yes, ma'am. So, अब जब पॉक्सो एक्ट में, जब सन 2012 में बच्चों के लिए जब एक्ट बनाया गया, 1 to 18 इज अ चाइल्ड, 0 to 18 इज अ चाइल्ड, बेसिकली जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। आपने सुना होगा इंदौर में एक 3 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ। अब वो 3 महीने की बच्ची ने कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा था क्या जो ल्योर करता था आदमी को? क्या वो 3 महीने की बच्ची ऐसा दिख रही थी या उसका एज ऐसा था जो किसी इंसान को ल्योर कर सकता था? नहीं, वियर्ड। देखिए दिमाग खराब, दिमाग के लोग, बच्ची क्या 80 साल की, बुजुर्ग क्या, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। Am I right? So rape is a different thing has mentioned by the law that sexual intercourse against a person's consent। अगर मेरे कंसेंट के बगैर, मेरे कंसेंट के खिलाफ अगर मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ कुछ करता है तो वो रेप में माना जाएगा। अब ये कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है। So there are helplines, I'll show you after this session. Now the crime against women, molestation के लिए धारा 354
आईपीसी की धारा 354 है, जिसमें मिनिमम 1 साल की सजा, मैक्सिमम 5 इयर्स और फाइन अलग से। ईव टीजिंग मतलब किसी को छेड़ना, धारा आईपीसी की धारा 509, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स एंड फाइन, 3 साल कम से कम। हमें लगता है ना, हम यहाँ से गए और किसी ने हमें रास्ते चलते यूं ही कह दिया, और मोटी आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, तो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोला। नहीं, हम अगर उसे साबित कर दें ये लड़का मुझे रोज इस तरीके से बोलता है और वो मेरे मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाता है, तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। If you could unmute few people, they would be like, ask questions and interact with me. This is something very boring. मुझे interaction की आदत है मैडम। तो स्टॉकिंग, जैसे मैंने बताया, किसी का पीछा करना, 354D धारा 1 साल की सजा, मैक्सिमम 3 साल की सजा और फाइन। अगेन वॉयरिज्म, आपके मर्जी के खिलाफ किसी ने आपका पिक्चर लिया तो धारा 354C 1 साल, मैक्सिमम 3 साल की सजा। हस्बैंड की क्रुएलिटी और रिलेटिव की क्रुएलिटी, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स आपके साथ डाउरी जो हरासमेंट करते हैं डाउरी के लिए, उसमें तो 498 है, सबको पता है, 5 साल की सजा और फाइन है। मर्डर 302, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो डाउरी डेथ हो जाती है वो 304, 7 इयर्स की सजा, मैक्सिमम इम्प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब जिंदगी भर के लिए। अगर किसी के द्वारा डाउरी डेथ हो जाता है तो लाइफ टाइम वो जेल में रह सकता है। रेप और मर्डर में भी लाइफ टाइम, और आजकल तो रेप और मर्डर में मिनिमम 20 इयर्स से तो सजा ही शुरू होती है। पॉक्सो एक्ट में भी और विमेन सेफ्टी एक्ट में भी, दोनों एक्ट में सेम सजा चलती है, 304B, जिसमें आप सोचिए मिनिमम 20 साल की सजा शुरू होती है, 10 से 20 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहले ये 7 साल था। रेप और मर्डर के लिए वही 20 इयर्स और इम्प्रिजनमेंट, जैसे मैंने बताया। अटैकिंग ए वुमन बाय डेंजरस वेपन 326A, नॉट लेस देन 10 इयर्स और 10 लाख रुपए की फाइन। अब अबेटमेंट टू सुसाइड, किसी ने हमें इतना हरास किया, हमें इतना परेशान किया कि हम सुसाइड करने के वर्ज पे आ गए, तो धारा लगती है 306, मिनिमम 10 साल और फाइन। सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स, हमेशा 100 डायल करें। कभी भी रेप या आपके साथ कोई मोलेस्टेशन होता है तो अपनी बॉडी को ना धोएं, उस क्लोथ को ना धोएं। देखिए, सुनने में ये बहुत बुरा सा लगता है, ऐसा लगता है जब हम LIC की बात करते हैं कि आपके डेथ के बाद आपके परिवार को इतना मिलेगा, सुनने में अजीब लगता है ना LIC वाले जब बोलते हैं तो, मगर फैक्ट है। इसी तरीके से मैं ये बोलती हूँ, अगर कि अपने कपड़े मत धोइए, अपने हाथ मत धोइए, नहाइए मत, ताकि एविडेंस ना धुल जाए, तो बुरा लगता है। हमें लगता है कि अरे मेरे साथ क्यों होगा ऐसा, ईश्वर ना करें। मैं तो चाहती हूँ, देखिए मैं शुरुआत में 2 लाइन ये बोलना चाहती थी, क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए तो मैंने डायरेक्ट सेशन शुरू किया, कि दुख भी होता है, खुशी भी होती है। दुख इस बात का होता है कि हम आज भी वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, हम आज भी वुमेन सेफ्टी पे सेमिनार ले रहे हैं। मैं पिछले 7 साल से सेल्फ डिफेंस की सेमिनार रेगुलर ले रही हूँ, 18 साल से वुमेन सेफ्टी की बात कर रही हूँ, और आज भी बात करनी पड़ती है, आज भी अवेयर करना पड़ता है। खुशी किस बात की होती है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ये बात करने देते हैं। देखिए, चीजें इतनी बिगड़ी भी नहीं है, ऐसा लगता है ना, जो परेशान करने वालों से बचाने वाले ज्यादा हैं हमारी तरफ। चलिए, कम से कम वुमेन सेफ्टी की बात तो हुई। क्यों हो, ये एक अलग मुद्दा है। ईश्वर ना करे कि हमें ये बात करनी पड़े, ऐसा हो जाए ये दुनिया कि ऑल विमेन शुड बी सेफ। लेकिन अगर ईश्वर ना करे, फिर मैं कह रही हूँ, गॉड फॉरबिडन ऐसा होता है, तो डू नॉट वॉश योर हैंड्स, डू नॉट वॉश योरसेल्फ, डू नॉट वॉश योर क्लोथ्स डायरेक्टली एविडेंस के लिए।
आप पहले आप पुलिस में जाएंगे, एक पुलिस इंस्पेक्टर या कांस्टेबल आपके साथ जाएगा, गवर्नमेंट डॉक्टर जो है वो आपको चेक करेगा। लॉज एंड FIR एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अब देखिए, जब हम FIR की बात करते हैं, इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। FIR की बात करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं, अगेन कमिंग बैक टू द फिल्म्स, ये मेरे इलाके का नहीं है। मैं हबीबगंज थाने का थाना देखता हूं और आपके साथ जो कुछ हुआ है वो शाहजहानाबाद पुलिस स्टेशन के थाने के पास आसपास हुआ है। होता है ऐसा कि हम गए, साहब हमने हमारा पर्स गुम गया है, हमारे को किसी ने थ्रेटनिंग किया है। कहाँ किया है? सिटी में। तो मैडम यहाँ क्यों आई? सिटी के पुलिस स्टेशन में करवाइए ना अपना FIR। तो आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर दैट 0 FIR। आप उनसे क्या कहेंगे? 0 पे कायम कीजिए FIR। 0 मतलब 0। आप कहेंगे 0 पे कायम कीजिए FIR मीन्स वो आपका FIR तुरंत के तुरंत लॉन्च करेगा और कंसर्निंग पुलिस स्टेशन पे वो फाइल भेजेगा इमीडिएटली। ये सारे रूल्स हैं, अपने को पता होना चाहिए। 0 FIR करो। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अपने पुलिस स्टेशन का मामला नहीं है इसलिए हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे। सो वेयर एवर यू आर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ढूंढिए और FIR लॉन्च कीजिए। एंड if the police refuses to cooperate, don't be rude or aggressive होने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है, टेल देम दैट आप बिल्कुल एक फर्म तरीके से कि आपको सब कुछ पता है, आप बोलिए मुझे मेरे राइट्स पता है, मैं अवेयर हूँ मेरे राइट्स के बारे में, मुझे मालूम है 0 FIR कायम होता है। हमेशा याद रखिए, वो आपसे कहेगा आवेदन देके जाओ, FIR लिखने की क्या जरूरत है। अब इस पर आप समझिए कि कोई आपसे ये बात क्यों करता है। कोई आपसे ये बात इसलिए करता है कि FIR करने से उनकी क्राइम रेट्स इंक्रीज हो जाती है। व्हेनेवर क्राइम इज द डाटा, जब आपका फीड हुआ तो क्राइम रेट इंक्रीज हो गया। हबीबगंज थाने वाला सोचेगा मैं क्यों अपने इधर पे एक और क्राइम ये सोचूं कि मेरे पुलिस स्टेशन में एक और क्राइम को क्यों फीड करूं, इसलिए वो मना करता है और कहता आवेदन देके जाओ। आवेदन कभी नहीं देना, आवेदन आपके मुताबिक कभी नहीं होता, FIR आपके मुताबिक होता है। FIR एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस ऑफिसर खुद लिखता है और वो ऐसे लिखता है कि सारे रिलेवेंट डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस, इंसिडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें लिखेगा, विटनेस के साथ लिखेगा और उसके बाद वो आपको पढ़ के सुनाएगा। ये आपके राइट्स हैं। साइन करने से पहले वो पूरी डिटेल आप पढ़ के देखिए, वो पढ़ के सुनाएगा और आपके अपने लैंग्वेज में हो, समझ आ रही हो तो आप उसे साइन कीजिए। और यू आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ द FIR। ये आपके राइट्स हैं FIR के कि आपको एक कॉपी पुलिस वाले देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ये नहीं कह सकता कि मैडम मेरे पास कार्बन नहीं है, मेरे पास फोटोकॉपियर नहीं है, आप बाहर से करा लाओ। नहीं, ये आपके राइट्स है। अब FIR की गलती से क्या हो सकता है? फैजाबाद मेरा ससुराल है, वहां हम लोग गए एक गर्मी की छुट्टियों में, तो वहां पे एक हमारी जो एक रिलेटिव लगते हैं उनकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, जुमा झटकी हुई। आते जाते में स्टॉकिंग करता था लड़का 9-10 महीनों से, ध्यान नहीं दिया। जब जुमा झटकी हुई तो उसका मोबाइल गिर गया, उसके हाथ में चोट आई, कपड़े थोड़े फट गए। उसने ये भी कहा तुझे मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तू क्या समझती अपने आप को, धमकी। जब FIR लॉन्च हुआ उसके बाद उसके मम्मी पापा बच्चे के साथ घर आ गए और हम करीबन 3-4 महीने बाद वहां हमारा जाना हुआ। तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि FIR हुआ है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्या बात है, अपन चल के जरा पता करते। जाके पता किया, हम लोगों ने पूछा, हम NGO चलाते हैं। हमने कहा क्यों साहब, क्यों नहीं अभी तक इनका FIR पे आपने कोई कार्रवाई की? तो उनका कहना था साहब एक मोबाइल ही तो गिरा है, मोबाइल गिरने का FIR क्या लॉन्च करना, और FIR तो हमने इनको लिख के दिया है ना साहब, इन्होंने साइन भी किया है।
पता चला आवेदन लिख के दिया था कि जुमान झटकी में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया और कृपया उस मोबाइल को ढूंढ के दिया जाए। आप सोचिए पुलिस वाले किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर हमने उनसे पूरी बात जानी, लड़की से पता चला उसने धमकी दी लड़के ने, हमने उसकी धाराएं बढ़ाई कि धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, टच किया इंटेंशनली, मोलेस्टेशन की धारा बनाई, तब जाके वो केस फाइल हो पाया। तो इस तरीके की घपले एफआईआर में हो सकते हैं, सो यू शुड नो योर राइट्स। Police is bound to file a report by a rape victim and listen to her grievances. You cannot be arrested with a ladies without a lady police. अब आप देखिए, ये पॉक्सो एक्ट में भी लगता है। आप बिना लेडी पुलिस ऑफिसर के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। और आपके पास कांस्टेबल होना चाहिए, साथ में लेडी कांस्टेबल हो, लेडी ऑफिसर हो, सादे वर्दी में आए वो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आपकी सर्चिंग जब होती है तो सिर्फ लेडी कांस्टेबल या ऑफिसर करें। ये सेक्शन 51 के तहत आपका हक है। मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा फीमेल डॉक्टर के साथ होना चाहिए। सनसेट के बाद आपको कोई पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता, सनसेट के पहले कोई आपको पुलिस स्टेशन में बुला नहीं सकता। कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। सारे प्रोसेस में जब कभी कोई विक्टिम जाके अपनी बात करता है तो उसका आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं कर सकते। ये पॉक्सो के एक्ट में भी है कि अगर बच्चे के साथ गॉड फॉरबिडन कुछ हो जाता है तो उसका चेहरा ब्लर करके दिखाना जरूरी है। यू कांट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर द इंटरोगेशन। आप इंटरोगेशन के लिए आपको बुलाने की मतलब पुलिस वाले में कोई राइट्स नहीं, आपके पास आएंगे वो बात करने, वो भी प्राइवेटली। इतनी बात में किसी को कोई बात पूछनी हो तो हम आगे बढ़े। हेलो, चलिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जिसको हम कैश कहते हैं, किस जगह पे, किस जगह पे कुछ और कहते हैं, कैश मीन्स ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ एक कमेटी फॉर्म होती है जिसमें लेडीज स्टाफ होते हैं और जो कंपनी का हेड होता है वो रहता है। बाहर से एक कोई सोशल वर्कर या इस तरीके के काम करने वाले को वो चेयरपर्सन बनाते हैं और आपकी कंप्लेंट सुनी जाती है। आप रिटर्न और ईमेल या एक पूरे डिस्क्रिप्टिव कंप्लेंट कर सकते हैं, रिलेवेंट डेट दे सकते हैं कि मुझे इस समय पे बुलाया गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, टाइमिंग, लोकेशंस, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, वर्किंग रिलेशन बिटवीन द पार्टीज कि मैं एम्प्लॉय हूँ, वो एम्प्लॉयर है, या मैं एम्प्लॉय हूँ वो भी एम्प्लॉय है। इस तरीके की चीजें, सारी चीजें आप लिखें। और आप अपनी कमिटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप अपनी कमिटी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेंड और स्किल्ड कॉम्पिटेंट कंप्लेंट कमिटी बने, टाइम बाउंड प्रोसेस हो और इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, एश्योरेंस ऑफ नॉन रिटेलिएशन हो और काउंसलिंग और अदर इनेबलिंग सपोर्ट जब जरूरत पड़े तब आपको मिले, क्योंकि हम इतने ट्रॉमा से गुजरते हैं कि हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। असिस्टेंस इफ द कंप्लेनेंट ऑप्ट्स फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं मैं सेफ नहीं हूं तो आपको कोई असिस्टेंस भी मिलना चाहिए। अब हम सेल्फ डिफेंस टिप्स पे आए, उसके पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको only 2 minutes are left, so please complete your talk because we have to present you a certificate as well in the last 1 minute. और मैडम आप कहते तो मैं इतना लंबा बोलती नहीं, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती, कुछ ऐसा करती। देखिए, सेल्फ डिफेंस टेक्निक जो है, हमेशा एक बैलेंस पोस्चर आप बना के रखें और कोई भी डेंजर के पोटेंशियल आपको दिखता है तो आप हमेशा अपने आर्म्स को टक रखें और अपनी ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ जैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पीछे से भी कोई आपको पकड़ रहा है तो आप उसको गिरा सकें, इस तरीके की टेक्निक्स हमने डेवलप किया हुआ है। हमेशा जोर से चिल्ला के नो बोलें और हमेशा वनरेबल पार्ट्स अटैकर की बॉडी का देखें, उसका नाक, उसका छाती का बीच का हिस्सा और उसका ग्रोइन का पार्ट, अटैकर की बॉडी को आप वहां पे अटैक करें जहां पे
आप ये पाम जो है वेपन बना के अटैक कर सकते हैं, एल्बो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, जॉ पे, नाक पे, थ्रोट पे मार सकते हैं, और अपनी नी को एक वेपन बना के उसके सिर पे मार सकते हैं, लेग किकिंग कर सकते हैं। लेग किकिंग से हम जो बोलते हैं उसका मतलब होता है कि हम उसके ग्रोइंग पे मारे, तो वो वहां पे हमको अटैक हो सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके के सेल्फ डिफेंस टेक्निक होते हैं। ये देखिएगा, फटाक से हम देख लेंगे, टाइम नहीं है तो भी जल्दी देख लेंगे। ये देखिए, ये हम मार रहे हैं उसके थ्रोट पे, वो मुझसे कितना लंबा है आप लोगों को दिख रहा है, फिर भी मैं मार पा रही हूं उसके गर्दन पे। ये देखिए, ये पीछे से अटैक करते हुए बंदे को साड़ी में मैं गिरा रही हूँ। ये देखिए, अगर मुझे कोई पकड़ने आता है, मैं अपना हाथ फैला के उसके कान पे जोर से ऐसे मारूंगी तेजी से, और उसके बाद उसका सिर पकड़ के लेग से उसके ग्रोइन पार्ट पे, यानी उसका जो वीक पॉइंट है वहां मारूंगी। ये गिराना कैसे है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, ये अगर आप साड़ी में हैं, कोई आपको पीछे से अटैक करता है तो आप अटैक कर सकते हैं। आप अपने पाम का यूज किसी के गर्दन पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी दो लोगों ने पकड़ा, ये दोनों आप देखिए कराटे मास्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों को मैंने बिठा दिया था साड़ी में। ये देखिए, ये ब्लैक बेल्ट है लड़का, और ये रियल फाइट हुआ था साड़ी में उसका मेरे साथ। ये देखिए, ये एक स्कूल का सेशन है, साड़ी में कैसे किसी को उठा के पटका जा सकता है। ये देखिए, गर्दन पे कोई आपका पकड़ रहा है तो आप अगेन वही वाला करेंगे, यू कान पे, और उसके बाद आप उसके पीठ पे मार सकते हैं। ये सब तुरंत तुरंत करने की चीजें हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। किसी ने आपको बैक से पकड़ा है, आप पैर चौड़ा करेंगे, नीचे झुकेंगे, आपके पैर के पास उसका पैर दिखेगा, आप उसका पैर पकड़ेंगे और खींच देंगे, वो जमीन पे आ जाएगा। इसको मैं फिर से बैक करती हूँ। ये देखिए, आपको किसी ने पीछे से पकड़ा, आपने उसका पैर पकड़ा नीचे झुक के, और उसके बाद आपने उसके पैर को खींच लिया, वो बंदा नीचे गिर गया। ठीक है, आई होप मैं जल्दी जल्दी समझा पाई। इतनी जल्दी समझा पाई कि नहीं समझा पाई मुझे नहीं बिल्कुल मालूम। बिल्कुल समझ में आ रहा थैंक है। यू फॉर प्रोवाइडिंग मी सेशन। हेलो जी मैम। मैम, इज इट हेलो? Am I visible? Am I visible now? Yes, yes, ma'am, you are visible. Okay. Yeah, continue. I have completed within 3 minutes, I suppose. Yes, ma'am. It was wonderful. Especially, we liked it. These technique styles that you showed us to defend, women themselves. It's Yeah. really a nice session. Talking to you, you made us aware of various laws. Actually, I wanted to speak, How to make you have made us aware also about a few laws which we were not knowing, and how to be alert, how women have to be alert all the time. So thank you very much, ma'am. It was a wonderful session talking to you, and thank you. on behalf of Sage Group, I would like to thank you. I'm thankful to Neeta Jain madam, also moderator of today's talk. Now we would like to present our digital certificate to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so you, much. ma'am. Thank you for being with us. Thanks all for listening patiently. I don't know how much fruitful was the session, because this is, for me, this is the first time when I am doing something in webinar. That was yeah, a good session. self-defense cannot be done in webinar. It is always a session, and it should be always a seminar where I can show my tips, my moves. Then you will be, like that enthusiasm is not there in webinar. People are not interacting. मुझे हंसी खुशी सुनाई नहीं दे रही है. So anyways, thank you so much. In future, maybe we will get opportunity. We'll definitely invite you. Thank you. Sure. Thank you so much. Thank you so much. So should I log out? Yes, ma'am. Thank you. Okay.